اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جی اے رضوی آفیشیل۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو کہ ہم نے جورسپروڈنس کی سیریز لیکچر کی سیریز کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس پر ہم جورسپروڈنس پر آج ہمارا اگلا لیکچر ہے۔ میں تھوڑا سا ریکیپ دیتے ہوئے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ پچھلا لیکچر ہمارا تھا جنرل تھیوریز آف لا، جس میں ہم نے نیچرل لا تھیوری کو پڑھا، جس میں ہم نے لیگل پازیٹیوزم کو پڑھا، اسی طرح لیگل ریئلزم کو دیکھا، اور اسی طرح تھیوریز آف جسٹس کو دیکھا، اور اس سے جڑی بہت سے پہلوؤں کو تعارفی جائزہ لے کر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر ایک جو اس کی تھیوری ہے، جیسے آج ہم نیچرل لا تھیوری کو پڑھ رہے ہیں، جس کا مقصد یہی ہے کہ نیچرل لا کی ابتدا کب ہوئی، اس کی ہسٹری کیا ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ کس دور میں کس طرح ہوئی، اور نیچرل لا کا ڈکلائن کب اور کس کے ہاتھوں ہوا، اور بعد میں پھر نیچرل لا کا ہی ریوائیول ممکن ہوا، اور وہ خوش نصیبی کس کے حصے میں آئی۔ تو آج ہم اس ساری باتوں کا جائزہ اپنی اس مختصر ویڈیو میں لیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک نیچرل لا اینڈ موریلٹی ہے کہ واٹ از نیچرل لا اینڈ موریلٹی، واٹ از دا ریلیشن شپ آف لا ود موریلٹی، اور اسی طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے، یہ فرسٹ اسکول آف تھاٹ آف جورسپروڈنس ہے، جس نے صدیوں تک راج کیا ہے۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں یہ بات بھی بتائی تھی کہ یہ وہی نیچرل لا تھیوری ہے جس نے ہزاروں سال راج کیا لا کی دنیا میں۔ تمام تھنکر، تمام جورسٹ، اور بلکہ تمام تر فلاسفرز نے لا کے، جسٹس کے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا اور اس کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ تو آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ نیچرل لا اسکول میں ہمیں یہ بات اس طرح بتا دوں کہ اس میں ہمارا لیکچر پڑھنے کی سکیم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو 4 بنیادی ہیڈنگز میں پڑھنا ہے۔ اس میں پہلی ہیڈنگ اس کی یہ ہے اوریجن ہسٹری آف نیچرل لا، کہ اوریجن اس کی ابتدا کب ہوئی، اور اسی طرح ہسٹری اس کی بتانی ہے، اور اسی طرح یہ بھی بتانا ہے کہ یہ نیچرل لا تھیوری کہتی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پروپوننٹ کون سے ہیں اور اس کے مخالفت کرنے والے کون سے ہیں، اور اس نے کس طرح مختلف حکومتوں کو اور کس طرح مختلف حکومتوں کے مختلف سٹیزن کو پوری دنیا میں کس طرح اثر انداز رہی ہے۔ تو آئیے، اس کے بعد میں بتا رہا تھا کہ 4 مختلف ہیڈنگز بنائی ہیں ہم نے۔ تو دوسری ہماری ہیڈنگ جس کے تحت ہم نے اس کو دیکھنا ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف نیچرل لا، کہ یہ کون سے دور میں اور کن فلاسفرز کے میجر ورکس اور کن پولیٹیکل تھنکرز کے میجر ورکس سے یہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ اسی کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ڈکلائن آف نیچرل لا آ جاتا ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے فلاسفرز ہیں، وہ کون سے پولیٹیکل تھنکر ہیں، یا وہ کون سے لیگل جورسٹ ہیں جنہوں نے نیچرل لا کی کھل کر مخالفت کی اور سرے سے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ہیومن لا اور ڈیوائن لا، ایک طرف نیچرل لا اور ایک طرف
ह्यूमन मेड लॉ यानी पॉजिटिव लॉ को रखा, एनालिटिकल स्कूल वाले जॉन ऑस्टन, जेरेमी बेंथम। तो इसको हम वजाहत में देखेंगे। और हमारी वीडियो का जो चौथा हिस्सा है वो है रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ। तो किस तरह थिंकर्स, फिलोसोफर्स, पूरी दुनिया इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गई कि जिस तरह लीगल पॉजिटिविज्म ने लॉ और मोरालिटी को अलहदा कर दिया है, तो उससे ना सिर्फ लॉ और मजहब अलहदा हुआ है, बल्कि सिरे के नाम से ही इखलाकियात खत्म हो गई है, रिवायात खत्म हो गई हैं। कोई भी माल मर्यादा, कोई भी इज्जत और आबरू और कोई भी वो पुरानी वैल्यूज जो कि मॉरल वैल्यूज, तमाम जितने भी कवानीन थे, जो भी पुरानी तहजीबें थी और जो भी पुराने कवानीन थे, उन तमाम की जान थी मोरालिटी, इखलाकियात। ये मोरालिटी है क्या? इसमें हमने थोड़ा सा तारुफ पिछली वीडियो में भी किया था। इस पे हम अपनी एक अलहदा वीडियो बनाएंगे कि व्हाट इज meant by morality and what is the role of morality to advance and develop the law and what is the relationship of morality and law। तो आज हम सिर्फ इतना देखते हैं, जिस तरह मैंने अपनी कल वाली वीडियो में बताया कि अगर एक आम आदमी को समझाना हो कि मोरालिटी है क्या, तो मोरालिटी दरअसल इखलाकियात है, वो एथिक्स है। हमारे इंसानों के अंदर ज़मीर की वो आवाज है, अगर कोई भी इंसान गलत काम करता है तो फौरन उसके अंदर से एक आवाज उठती है कि ये काम आपने गलत किया है, सही नहीं किया। और इसी तरह अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो उसको अंदर से, अपने दिल से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक प्लेयर मिलता है, और इस तरह वो खुद समझ जाता है, उसको एहसास होता है अच्छी फीलिंग्स का कि ये मैंने काम अच्छा किया है। और इसको जांचने का सबसे बड़ा अमल दखल पब्लिक ओपिनियन का है, क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन है, जो सोसाइटी की ओवरऑल ओपिनियन है, वो कभी भी अगेंस्ट द मोरालिटी, इखलाकियात एंड लीगल एज वेल एज एथिक्स नहीं हो सकती। तो आइए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं कि इसकी ओरिजिन यूनान, ग्रीस में हम चलते हैं, जहां पर ये तीन, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में इस बात का इकरार किया है कि सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, these three all are the founding father of all philosophy in the world. Not only the philosophy of law, they are founder and founding father of all philosophies as available in this world. दुनिया का कोई भी ऐसा ना लीगल ज्यूरिस्ट है, ना पॉलिटिकल थिंकर है, और ना ही सोशल साइंटिस्ट का कोई ऐसा रिसर्चर है, और इसी तरह बहुत से जिंदगी के और अहम शोबे। गर्ज चाहे जो भी चीज देख लें, किसी भी सवाल का जवाब, किसी भी रिसर्च की इब्तदा, किसी भी चीज को देखने की ओरिजिन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, साइंस पे अगर हम बात करें, अगर हम अदब पे बात करें, अगर हम जस्टिस पे बात करें, अगर हम ब्यूटी पे बात करें, अगर हम एस्थेटिक पे बात करें, तो जो भी कंसेप्ट देखना होगा तो ये फाउंडिंग फादर्स सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल को देखना होगा। तो आइए देखते हैं कि सोक्रेटिस का नेचुरल लॉ के बारे में क्या ख्याल था। What is the idea of Socrates about natural law? He declared it as virtue. Virtue का मतलब नेकी होता है, अच्छा काम होता है, और सोक्रेटिस के नजदीक अच्छा काम करना, गुड को, अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा और बैड कहना, यही वर्च्यू है।
और एक दूसरी इसमें बात जो कि वर्चू के हवाले से है और सोक्रेटिस के हवाले से है, तो वो हमें ज्यादा वर्क इस पर जो है वो प्लेटो का है, क्योंकि सोक्रेटिस की अपनी कोई भी राइटिंग्स नहीं मिली। इसलिए जो प्लेटोस का काम है, जो अरस्तु का, अफलातून का काम है अपने उस्ताद सोक्रेटिस के बारे में, उसने जो डायलॉग्स लिखे हैं विद द सोक्रेटिस एंड विद द प्लेटो, तो उससे हमें पता चलता है कि सोक्रेटिस का कितना बड़ा काम है। हम बात कर रहे थे नेचुरल लॉ की, तो इसलिए सोक्रेटिस ही हिमसेल्फ, सोक्रेटिस बिलीव्स दैट देयर इज एन इंटरनल लॉ ऑफ नेचर एंड देयर इज अ वर्च्यू in the man and the mind of mind, and it is not derived from any source. Rather, this virtue is itself existed in the human mind, and this cannot be changed by anyone. और इसको ना कोई तब्दील कर सकता है, ना कोई इसे चेंज कर सकता है। ये इटर्नल लॉज हैं, जो कि डिवाइन लॉ है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से बनाए गए वो कानून हैं, जो हर रेस के लिए, जो हर रिलीजन के लिए, जो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, उस तमाम के लिए एक ही है नेचुरल लॉ। और नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल आप जिस भी मजहब को, जिस भी सेक्ट को, जिस भी माशरे को, जिस भी तहजीब को उठाकर देखें और उसमें अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को उनकी लाइट में, उनकी रोशनी में परखें, तो जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल हैं, मिसाल के तौर पर अडाई अल्ट्रम पाल्ट्रम, जो कि लैटिन में है, उसका मफहूम यही है। और हमारी अदालतों में, ना सिर्फ हमारी अदालतों में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया की तमाम अदालतों में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एप्लीकेबल है। जिस तरह मैंने मिसाल दी है अडाई अल्ट्रम पार्ट्रम, जिसका मतलब ये होता है कि नो बॉडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी भी इंसान को सुने बगैर उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं किया जा सकता। किसी भी पार्टी को राइट ऑफ हियरिंग दिए बगैर उसके खिलाफ एडवर्स ऑर्डर नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेटो का दौर आता है। ये भी अभी ओरिजिन थी, क्योंकि ये हम एंशियंट पीरियड में बात कर रहे हैं, जो आज से 2000 या 2500 साल पहले की बात है, जब नेचुरल लॉ की ओरिजिन हो रही थी। और इसीलिए मैंने कहा है कि सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, दे आर फाउंडिंग फादर ऑफ ऑल फिलॉसफी इन द वर्ल्ड। तो प्लेटो पर बात हो रही थी। प्लेटो का भी बुनियादी जो कंसेप्ट था वो ट्रूथ के बारे में था, वो जस्टिस के बारे में था, वो ब्यूटी के बारे में था, वो एस्थेटिक के बारे में था, और वो एथिक्स के बारे में था। और जब एथिक्स की बात आती है तो लामहला फिर मोरालिटी की बात आती है, और जब मोरालिटी की बात आती है तो फिर इखलाकियात की बात आती है, और फिर जब इखलाकियात की बात आती है तो ऑटोमेटिकली देन मजहब की बात आती है। और इसीलिए कहते हैं कि नेचुरल लॉ किसी ने नहीं दिया, ये अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया डिवाइन लॉ है। इसका कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि इसे अल्लाह ताला ने बनाया है, और इसी तरह इसे ना कोई तब्दील कर सकता है, ना इसे ही कोई चेंज कर सकता है, और ना ही इनको कोई खत्म कर सकता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि नेचुरल लॉ थ्योरी में तीसरा बड़ा नाम एरिस्टोटल का है, जो कि नेचुरल जस्टिस की बात करता था। और नेचुरल जस्टिस के अलावा ये आइडियलिज्म की बात करता था। मैंने अपने पिछले लेक्चर में एरिस्टोटेलियन
प्रिंसिपल की बात की है और उसमें मैंने कुर्सी वाली मिसाल दी, जिसमें मैंने कारपेंटर या बढ़ाई के पास कुर्सी बनाने का आइडिया और जो कि फॉर्म की शक्ल में होता है और उसके पास कील, लकड़ी, हथौड़ा, ये सारा सामान सब्सटेंस की सूरत में होता है। तो वो प्रिंसिपल और इधर से अरिस्टोटल से ही लिया गया है कि वो आइडियलिज्म की बात करता है, उसी ने प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म दिया था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि रोम शहर आ जाता है। अब हम यूनान से निकल आए हैं, अब हम रोम में आ गए हैं, जब रोमन एम्पायर फुली एम्पावर्ड था और तकरीबन दुनिया के अक्सर और बेशतर हिस्से पर रोमन एम्पायर की हुकूमत थी। तो उस दौर में एक बहुत बड़ा नाम जीनो का है। हुए जीनो, अगर फिलॉसफी का स्टूडेंट हो, स्टूडेंट तो नहीं, सिर्फ दिलचस्पी रखने वाला, कोई फिलॉसफी से सिर्फ रस्मी दिलचस्पी रखने वाला भी कोई अगर स्टूडेंट होगा तो वो जीनो को, वो रोम के इस बहुत बड़े एंशिएंट पीरियड के दौर कदीम के इस अजीम मुफक्किर और फलसफी की जीनो को जरूर जानता होगा। जीनो की एक बहुत मशहूर मिसाल एरो के बारे में है, तीर के बारे में है, कि जब वो कहता है जीनो कि जब तीर हवा में जा रहा होता है तो वो हर मकाम पर रुका होता है। ये आंखों का धोखा है कि हमें वो नजर आ रहा होता है कि वो मुसलसल जा रहा है, लेकिन तीर अपने जाते हुए हर मकाम पर रुका हुआ है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स उस वक्त इतनी इम्प्रूव नहीं होती थी और उस हद तक, बल्कि मैथमेटिक्स की इम्प्रूवमेंट जो 20th फर्स्ट सेंचुरी की बात है, उसमें आकर ये साबित हुआ है। और प्लैंकियन लेंथ पे छोटे से छोटा जरा भी तकसीम हो सकता है, तो जाकर जीनो का ये मिसाल गलत साबित हुई। अदरवाइज जीनो का कायम किया हुआ ये पैराडॉग के तीर अपने जाते हुए मकाम से गुजरते हुए हर मकाम पर रुका हुआ है, इसको बर्टन रसल ने भी जवाब किया, इसको बर्गसा ने भी जवाब किया, बड़े बड़े अजीम फिलोसफर ने, कांट ने इस पर बात की, निश्ते ने इस पर बात की, लेकिन कोई भी जीनो के इस पैराडॉक्स को और जीनो की इस मुश्किल को हल नहीं कर सका, जब तक कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स अपनी तरक्की की इंतहा तक पहुंच गई। तो जीनो को इस लेक्चर के हवाले से जो जीनो की रेलिवेंस है, जो नेचुरल लॉ के हवाले से जीनो का जो काम है वो बहुत बड़ा काम है। जीनो हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है कि जीनो एक बहुत बड़ा ताजर था, अमीर आदमी था, लेकिन उसका अचानक ही सडनली एक ऐसा सरप्राइज उसके लिए हुआ कि उसकी वो तमाम दौलत उससे छिन गई, लुट गई, उसके तजारत के काफले को लूट गया और इस तरह जीनो जो कि बहुत बड़ा ताजर था गरीब हो गया और मायूसी में चला गया। लेकिन जब इस डिप्रेशन के इस दौर में उसने सोक्रेटिस को पढ़ना शुरू किया, देन ही बिगेन टू लव फिलॉसफी एंड वो फलसफे में इतना ज्यादा आगे चला गया कि वो सोक्रेटिक मेथड पर ही उसने एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया, स्टोइसिज्म। और स्टोइसिज्म दरअसल वो एक जगह थी उस वक्त की, स्टोई प्लांका के नाम से है वो जगह। आप जी भी अगर आप गूगल पर सर्च करें तो जीनो बैठकर उस जगह में अपने जो उसके स्टोइक्स, उसके जो स्टूडेंट्स होते थे जिनको स्टोइक्स बुलाते थे, वो उनको बैठ के फिलॉसफी की तालीम देता था। तो उसने स्टोइक मेथड को डेवलप किया। स्टोइक मेथड क्या था? वो नेचुरल लॉ के बारे में था, वो नेचुरल लॉ की रिकग्निशन के बारे में था, जिसको देखकर रोमन एम्पायर बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ और रोमन एम्पायर जीनो से बहुत ज्यादा मुतासर था। उसकी नेचुरल लॉ थ्योरी जो जीनो ने मुतारिफ कराई थ्रू
स्टोइसिज्म, तो उससे रोमन अंपायर जो है मुतासर होते हुए उसने पहली दफा दुनिया में कानून को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, और उनमें जो पहला था वो था जस नेचुरलिस। जस नेचुरलिस का मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ही बुनियाद होगा, और दूसरा था जस सिविली। जस सिविली जो था वो फॉर सिटीजन था, वो रोमन अंपायर के जेर असर जो लोग थे, जो रोम में ही रहते थे सिटीजन, वो उन पर लागू होता था जो कानून, उसको जस सिविली कहते हैं। और इसी तरह जो कि फॉरनर पर अप्लाई करता था उसको जस जेंटियम कहते हैं। तो इस एंशिएंट दौर में, दौरे कदीम में, ना सिर्फ मुल्की कानून जो है वो डेवलप हो रहा था, बल्कि पहले इंटरनेशनल लॉ की बुनियाद रखी जा रही थी, while coding the jus gentium by the Roman Empire। तो इस तरह हमने देखा कि यूनान के ये 3 फाउंडिंग फादर ऑफ ऑल फिलॉसफी, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, और रोम के शहर के 2 फिलॉसफर, पहला जीनो जिसको हमने पढ़ लिया है, जीनो को, अब हम पढ़ेंगे सिसरो को। सिसरो भी रोम में एक बहुत बड़ा लॉयर था, वकील था, और फलसफे से प्यार करता था, बहुत पढ़ता था, हर वक्त इसके इर्द गिर्द किताबें होती थीं, और इसने भी नेचुरल लॉ को एडमिट किया और उसके लिए बहुत काम किया। और सिसरो की एक और बात हिस्ट्री में ये मौजूद है, हिस्ट्री की किताबों में, कि रेनेसांस का दौर, यूरोप में जब तरक्की का दौर, तहरीक एहयाए आलूम का दौर जब शुरू हुआ, तो वो उस वक्त शुरू हुआ जब सिसरो के लेटर मार्टिन लूथर किंग के हाथ लगे, और जब उसने उनका तर्जमा करवा के उसमें कुछ ऐड, कुछ ओमिशन करके, कुछ डिलीशन करके, जब मार्टिन लूथर किंग ने वो पर्चे यूरोप के माशरों में चोरी छुपे तकसीम करना शुरू किए, तो उस वक्त ही यूरोप में बेदारी पैदा हुई। उस वक्त ही से यूरोप में तहरीक अहयाए आलूम शुरू हुई। तो नॉट स्टैंडिंग विद अदर मेरिट्स ऑफ द सिसरो, हमने सिसरो को यहां सिर्फ नेचुरल लॉ की हद तक देखना है, तो सिसरो का भी मानना यही था कि नेचुरल लॉ is the supreme law of any land, and the same is eternal, and the same is also immutable, और इसको डिलीट नहीं किया जा सकता, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, और इसमें तरमीम नहीं की जा सकती। ये सिसरो का कहना था नेचुरल लॉ के बारे में। तो आज हम अपनी पूरी इस लेक्चर, नेचुरल लॉ का जो लेक्चर है, इसको जल्दी जल्दी अब जरा पढ़कर खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये फिलॉसफी है ओवरऑल। तो फिलॉसफी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि ये खुश्क सब्जेक्ट है और काफी टाइम लेता है। बहरहाल मैंने कोशिश की है कि एक ना सिर्फ LLB के स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर काम आए, बल्कि वो मेरा भाई जो LLM कर रहा है, या वो जो PhD लेवल पर रिसर्च वर्क कर रहा है, या वैसे पेपर दे रहा है, तो उसके लिए ये मुफीद और सूदमंद साबित हो। तो आइए हम दूसरी हेडिंग की तरफ चलते हैं, जो कि डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ की है, कि मिडीवल पीरियड में, पीछे हमने इब्तदा ओरिजिन इसकी पढ़ी एंशिएंट कदीम दौर में, अब हम इसकी डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, वो है मिडीवल पीरियड, जो कि 10th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक है। और इस सेंचुरीज का बहुत बड़ा नाम सेंट थॉमस एक्विनस है। सेंट थॉमस एक्विनस ने अपनी मशहूर किताब सुम्मा थियोलॉजिया में
बहुत बड़ा काम किया। उसने नेचुरल लॉ थ्योरी को मिक्स विद द रिलीजन किया और यूरोप के तमाम सिटीजन को नेचुरल लॉ थ्योरी की फोर्स पर चर्च के ताबे कर दिया और इस तरह पूरे यूरोप में चर्च की हुकूमत कायम हो गई, जिसके पीछे सेंट थॉमस एक्विनस का काम था, जिसने नेचुरल थ्योरी के लिए बहुत काम किया। और इसी तरह आज तक सेंट थॉमस एक्विनस को नेचुरल लॉ थ्योरी में एक बहुत बड़ा नाम समझा जाता है। तो इसी तरह ये जब हम अपनी मुख्तलिफ फिलॉसफीज की, लीगल फिलॉसफीज की या ओवरऑल फिलॉसफीज की बुक रिव्यू की सीरीज का जब सिलसिला शुरू करना है, तो उसमें हम इन किताबों को डिटेल से देखेंगे, इनका रिव्यू लेंगे और इनको मिल बैठकर पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सिर्फ इसकी जो किताब थी, जो कि थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से थी कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ लॉ एंड रिलीजन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नेचुरल लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजन ऑफ एनी स्टेट। तो इसकी जो किताब, मशहूर किताब और भी हैं, लेकिन इस नेचुरल लॉ के हवाले से सुम्मा थियोलॉजिया इसकी बहुत मशहूर किताब है। तो जब हम बुक रिव्यू की सीरीज का सिलसिला शुरू करेंगे, तो उसमें आज हम जितनी भी इसमें बुक्स देखेंगे या उन बुक्स के ऑथर ज्यूरिस्ट हों, चाहे वो पॉलिटिकल थिंकर हों, तो उस सीरीज में हम उनकी बुक्स की रिव्यू का सिलसिला भी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम अपने वापस उसी बात पर आते हैं कि मिडीवल पीरियड में डेवलपमेंट नेचुरल लॉ शुरू हो गई। वो 10th और 12th सेंचुरी का दौर था और सेंट थॉमस एक्विनस का इस पर बहुत काम है। उसके बाद 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी का दौर आता है, जो कि रेनेसांस पीरियड है, जो कि यूरोप में तहरीक अहयाए अलूम का दौर था, जो कि यूरोप में तरक्की शुरू होने का दौर था। तो उसमें देखते हैं कि थॉमस हॉब्स आए, जॉन लोकी आए और जीन जैकस रोसो आए, जो कि पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने आकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी और इस तरह नेचुरल लॉ को आगे बढ़ाते हुए उसमें मजीद इजाफा किया। तो आइए देखते हैं कि थॉमस हॉब्स ने अपना मशहूर किताब है और इसमें जितने भी किताबों के नाम हैं या थिंकर के नाम हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, बहुत अहम है। ये आ जाता है कि लेविथियन किताब जो है वो किसने लिखी है। ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये सवाल आ जाता है, क्योंकि ये बहुत मशहूर किताब है लेविथियन। तो लेविथियन किताब जो है ये सोशल थ्योरी को डील करती है, थॉमस हॉब्स की थी। तो जिसमें उसने बताया है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ नेचर, के अवाम के हुकूमत पर क्या हकूक हैं और हुकूमत के अवाम पर क्या हकूक हैं, और इसी तरह हुकूमत पर अवाम के पर्सपेक्टिव से क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। तो ये स्टेट ऑफ नेचर की बात करता है। इसी तरह जॉन लोकी आए, उन्होंने भी अपनी मशहूर किताब टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि जब अवाम अपने राइट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी करते हुए अवाम के पास आकर, हुकूमत के पास आकर अवाम दस्तखत जब करता है, अपने राइट सरेंडर कर देता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट लिखा जाता है, तो उसमें दोनों पार्टियों पर राइट्स भी हैं, लायबिलिटीज भी हैं। वो कहते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ है कि व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ लायबिलिटी, कि जहां हक होगा जिम्मेदारी भी होगी, और जहां हक होगा उसकी तलफी होगी, हक तलफी होगी तो उसकी रेमेडी, उसका इजाला भी होगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को लेकर चलते हुए नेचुरल लॉ की डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया।
اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں وہ جین جیکس روسو ہے جنہوں نے مشہور اپنی تھیوری آف جنرل ویل دی، جو سوشل کنٹریکٹ تھیوری کی ایک قسم ہے کہ جب عوام انڈیویجول حکومت کے پاس جا کر اپنا رائٹ سرنڈر کرتا ہے تو وہ صرف اپنا ایک انڈیویجول کا نہیں کر رہا ہوتا، اسی طرح ہر انڈیویجول کا یہ ہوتا ہے کہ آن بیہاف آف آل ادر سٹیزن وہ یہ سوشل کنٹریکٹ کر رہا ہے، وہ اپنا رائٹ سرنڈر کر رہا ہے۔ تو اسی طرح حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کے بھی تمام تر توجہ کا مرکز عوام کا مفاد ہونا چاہیے، عوام کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے، اور اس کو اس میں کوئی لاغرضی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان تینوں نے سوشل کنٹریکٹ تھیوری دیتے ہوئے اسٹیٹ آف نیچر کی بات کی ہے، اور یہی بات کی ہے کہ واٹ از دا رائٹ اینڈ liabilities of the government in respects of citizen and same vice versa towards the government۔ اب اس کے بعد ڈکلائن کب ہوتا ہے نیچرل لا کا؟ ڈکلائن کا پیریڈ اوریجن بھی ہو گیا، ڈیولپ بھی ہو گیا، ہم نے پڑھ لیا، دیکھ لیا۔ تو اس کا ڈکلائن کب ہوا؟ تو ڈکلائن اس کا اس وقت ہوا جب لیگل پازیٹیوسٹ کا فلسفہ آیا، جب ہیوم، جب جرمی بینتھم، جب جان آسٹن، یہ جو اینالیٹیکل سکول والے تھے، انہوں نے نیچرل لا کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر ایسی کوئی موریلٹی نہیں ہوتی، انسان کے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ جس سے وہ خود بخود کوئی نالج حاصل کر لے، اور اس طرح انہوں نے اے پرائری نالج اینڈ اے پوسٹیریری نالج، یہ دو بہت اہم ٹرمیں ہیں۔ کسی بھی فلسفی کو اگر آپ نے پڑھنا ہے یا سمجھنا ہے، وہ فلسفی چاہے لیگل فلسفی ہو یا فلسفی آف سائنس ہو یا کوئی بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، اور اس کو آپ نے فلسفیکل لیول پر جا کر، ہائر ڈگریز پر جا کر، پی ایچ ڈی لیول اور ایم اے لیول سے آگے جا کر ہائر اسٹڈیز میں جانا ہے، ریسرچ ورک کرنا ہے اپنے سبجیکٹ میں، تو پھر آپ کو یہ دو ٹرمز جو ہیں کہ اپرائری نالج اور پوسٹیری نالج۔ پہلی ٹرم ہے جی اے پرائری نالج، دوسری ٹرم ہے اے پوسٹیریری نالج۔ تو لیگل پازیٹیوسٹ جب آئے تو انہوں نے یہ جو اے پرائری نالج ہے اس سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا بلیف جو ہے وہ صرف پوسٹیری نالج ہے، یہ وہ نالج ہوتا ہے جو تھرو ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے، یہ وہ ہے نالج جو تھرو ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہوا سے خمسہ وغیرہ۔ پرائری نالج جو ہوتا ہے وہ تھرو ایکسپیرینس نہیں ہوتا، بلکہ وہ بائی برتھ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہی نیچرل لا کی تھیوری کا سب سے بڑا فیچر ہے کہ نیچرل لا کا کوئی سورس نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ یہ نالج بائی برتھ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، جسے آپ پوسٹیری نالج نہیں بلکہ اے پرائری نالج کہتے ہیں، جو کہ پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہوتا ہے آپ کے ذہن کے اندر، جس کو آپ پڑھتے نہیں، جس کو آپ سیکھتے نہیں، کوئی آپ کو بتاتا نہیں۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ دراصل آپ کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے، یہ موریلٹی، یہ اخلاقیات وہ کسوٹی ہے جو آپ کے ایکٹس کو چیک کرتی ہیں۔
तोलती हैं और परखती हैं कि क्या ये काम अच्छा है या ये काम बुरा है। आप मिसाल के तौर पर बाजार में जा रहे हैं और उसी वक्त आपने देखा कि दो लड़के बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाते हुए आए और एक औरत का पर्स छीनकर लेकर चले गए। तो जैसे ही आपने ये एक्ट देखा तो फौरन आपकी फीलिंग्स आएंगी कि ये काम अच्छा नहीं हुआ, ये गलत काम है, ये बुरा काम है। ये वाला नॉलेज जो फौरन आपके अंदर उस वक्त अच्छी फीलिंग्स नहीं आई उन लड़कों के खिलाफ या उस वाकये की सूरत में, तो वो आपका ए प्रायरी नॉलेज है कि जैसे ही आपने गलत काम कोई देखा तो फौरन आप उस पर बोल उठे या कम अज कम आपके दिल ने आवाज जरूर दी कि ये काम गलत है या ये काम ठीक है। तो इसलिए इंसान के अंदर बाय बर्थ नेचुरल लॉ वाले नेचुरल लॉ स्कूल फिलॉसफी जो है, जो स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस नेचुरल लॉ का है, वो यही कहता है कि नेचुरल लॉ का कोई सोर्स नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के, क्योंकि ये बाय बर्थ इंसान के अंदर मौजूद होता है। ये कहीं से सीखा नहीं जाता, ये कहीं से पढ़ा नहीं जाता, बल्कि खुद ब खुद इंसान के अंदर डाल दिया जाता है। और इसी के बारे में जब हम देखें, जिस पे सोक्रेटिस जिसको वर्चू कहता है उसे साथ ट्रांसेंडेंटल भी कहता है, प्लेटो जिसे जस्टिस कहता है, जिसे परसूट फॉर बेटर लाइफ कहता है, उसे ये भी कहता है कि ये ट्रांसेंडेंटल आइडिया है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फिजिकल वर्ल्ड है। मिसाल के तौर पर ये जरा मुश्किल जुमला मैंने बोला है, लेकिन बहरहाल ये फिलॉसफी का ही सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, लीगल फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, तो उसमें मुश्किल जुमले तो आएंगे, लेकिन मैं अपने दोस्तों के लिए, व्यूअर्स के लिए आसानी पैदा कर देता हूं। तो इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर मोरालिटी, इखलाकियात ही दरअसल इसी नेचुरल लॉ का असल मौजू है। तो हमने ये देखा कि इसका डिक्लाइन उस वक्त हुआ जब ह्यूम ने आकर ये कहा कि ला तो इटर्नल नहीं होता, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जबानें बोलते हैं, उनकी मुख्तलिफ तहजीबें होती हैं, कहीं दुनिया के उस पार्ट में कोई और ला है, उधर कोई और ला है, तो इसलिए ला एक नहीं हो सकता। और इसी तरह मैंने आपको ये भी बताया कि उन्होंने ए प्रायरी नॉलेज को भी मानने से इनकार कर दिया, जो कि नेचुरल लॉ का मेन सोर्स माना जाता है। तो जर्मी बेंथम आ गया। जर्मी बेंथम ने भी, जो कि लीगल पॉजिटिविस्ट था, इसने लॉ की फील्ड में बहुत काम किया, इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जर्मी बेंथम ने भी नेचुरल लॉ की मुखालफत की और इसने सिर्फ ह्यूमन मेड लॉ को ही अहमियत दी। तो ये डिक्लाइन आया नेचुरल लॉ में। उसके बाद जॉन ऑस्टन, जो कि फादर ऑफ द एनालिटिकल स्कूल माना जाता है और जिसकी लॉ की डेफिनेशन जो ऑस्टन ने की थी वो आज तक बहुत मशहूर है कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन एंड बैक्ड बाय सैंक्शन, कि लॉ जो है वो सॉवरन की, इक़्तिदार आला का जो मालिक होता है, सॉवरन होता है, वो उसकी कमांड है। कमांड क्या है? उसका हुक्म है। अगर आप नहीं मानेंगे तो वो बैक्ड बाय सैंक्शन है, कि उसका मतलब ये है कि हुक्म नहीं मानेंगे, कमांड को ओबे नहीं करेंगे तो फिर आपको सजा मिलेगी। जबकि नेचुरल लॉ इसकी मुखालफत करता है। नेचुरल लॉ ये कहता है कि लॉ जस्ट भी होता है, अनजस्ट भी होता है, लॉ गुड भी होता है, लॉ बैड भी होता है। तो नेचुरल लॉ का मौजू बहुत वसी मौजू है, जो इंसानियत की फलाह बहबूद, उनकी रवायात, उनके एहतराम, उनकी डिग्निटी की बात करता है। जबकि पॉजिटिविस्ट इन तमाम बातों से इनकारी हैं। तो इस तरह हमने देखा कि इन तीन थिंकर्स ने आकर नेचुरल लॉ का डिक्लाइन का सबब बने। अब हम देखते हैं कि फिर किस तरह नेचुरल लॉ की रिवाइवल होती है। ये
20th سینچری سے 21 سینچری میں جب لان فولر نے پروسیجرل نیچرل لا پہ کام کیا اور ایک نئی تھیوری دی جو کہ نیچرل لا کو فیور کر رہی تھی، اور اسی طرح ہارٹ فولر ڈیبیٹ، وہ بھی میں نے یہیں لکھا ہے کہیں کہ فولر ہارٹ ڈیبیٹ، یہ فولر نیچرل لا کے فالوور تھے اور HLI ہارٹ جو تھے وہ اینالیٹیکل سکول والے تھے جو نیچرل لا کے مخالف تھے. تو ان دونوں کے درمیان ایک مشہور بحث ہوئی جس کو فولر ہارٹ ڈیبیٹ کرتے ہیں. اگر آپ گوگل پر لکھیں گے فولر ہارٹ ڈیبیٹ تو وہ اسی وقت آ جائے گی. جو لان فولر ہیں یہ نیچرل لا کے حق میں دلائل دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ لا وداؤٹ morality از نو لا، اور دوسرے بڑے اس کے جو آ کر حق میں بولتے ہیں وہ سٹیملر ہیں. سٹیملر یہ بات کرتے ہیں کہ اینالیٹیکل جورسپروڈنس کو بھی لے لیتے ہیں، وہ نارمیٹو جورسپروڈنس کو بھی لے لیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں گو کے دونوں میں مخالفت ہے لیکن دونوں کا مقصد ایک ہے، اینڈز ایک ہے، گول ایک ہے، تو ہمیں ان دونوں کو ملا کے بلکہ تمام دنیا کی جورس کو ایک نئی شیپ دینے کی ضرورت ہے. اس لیے وہ انٹیگریٹ جورسپروڈنس کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو تیسرا بڑا نام ہے ریوائول آف نیچرل لا کا، وہ بھی جان رالز نے دیا. یہ بھی بہت بڑے انگلش تھنکر ہیں، جورسٹ ہیں، جنہوں نے اپنی مشہور کتاب تھیوری آف جسٹس میں 2 کنسیپٹ دیے، اوریجنل پوزیشن اور ویل آف ایگنورینس. جب ہم اپنی بک ریویو کا سلسلہ اور سیریز بنانے کا سلسلہ شروع کریں گے تو اس میں ہم ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں گے کہ ویل آف اگنورینس اور اوریجنل پوزیشن جو جان رالز کی کتاب تھیوری آف جسٹس کے مین کنسیپٹ ہیں وہ ہیں کیا، اور جان رالز نے تھیوری آف جسٹس کتاب میں کون سا آئیڈیا آف لا پیش کیا ہے جو سوسائٹی کے لیے یکساں ان کے لیے مفید ثابت ہو سکے. تو اس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ 20th سینچری اور 21 سینچری میں آ کر ایک دفعہ پھر کیونکہ موریلٹی ختم ہو گئی تھی، بیلجیم کی پارلیمنٹ نے گے میرجز کو جائز قرار دے دیا، اور اسی طرح اب تو بہت سے کنٹریز ایسے ہیں، اور ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں بھی اب اس بات کی جو ہے وہ بڑی بحث چل رہی ہے، اور سپریم کورٹ آف انڈیا میں بھی یہ کیس چل رہا ہے کہ یہاں بھی سیم سیکس میرج کی اجازت دی جائے. یہ جو فریڈم کی بات ہوتی ہے، ایکویلٹی کی بات ہوتی ہے، اور جسٹس کی بات ہوتی ہے، تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. اینڈ وین ایور یو اکراس دا لمٹ یو ول بی ڈیمیجڈ بیکاز اٹ از ordained بائی اللہ Almighty ان دا ہولی بک آف ہولی قرآن کہ آپ حد سے اگر تجاوز کریں گے تو پھر آپ تباہ ہو جائیں گے اور میانہ روی اپنائیں گے، جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کا بہترین اصول میانہ روی ہے کہ آپ حد سے زیادہ بھی نہ بڑھیں اور بھی بہت زیادہ نیچے پیچھے بھی نہ جائیں. آپ میانہ روی کے ساتھ چلیں، اعتدال اپنائیں، اپنی زندگی کے ہر گوشہ میں اعتدال کو لے آئیں. اگر عبادت بھی کریں تو اتنی نہ کریں حد سے بڑھ جائیں، بلکہ عبادت بھی کریں تو اعتدال کے ساتھ کریں. اعتدال کا اصل مفہوم یہ ہے. تو اس لیے آج ہم نے اس میں دیکھا کہ نیچرل لا کو کس طرح اوریجن اس کی کس طرح ہوئی اور یہ کس طرح ڈیولپ ہوا، کس طرح اس کا ڈکلائن آیا اور کس طرح یہ نیچرل لا ریوائیو ہوا، اس کا احیاء ہوا، اور آج پھر نیچرل لا کی اتنی ہی اہمیت ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے ہوتی تھی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.